BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں صبا اعتزاز. پاکستان میں سیاسی کشمکش عروج پر پہنچ گئی. عمران خان کہتے ہیں حکومت کو نکال کے دم لیں گے. حکومت کہتی ہے قانون ہاتھ میں لینے والوں سے نمٹ لیں گے. اسٹیٹ کے جو فرائض ہیں ان کے اندر دخل اندازی کرے گا تو بالکل اس کے اوپر جو ہے ہم جو قانون کے مطابق کارروائی بنتی ہے وہ کریں گے. حماس کی جانب سے اسرائیل کے خلاف حملوں کی وجہ سے تنظیم کی حمایت میں اضافہ ہوا ہے. خطے میں جنگ بندی کے دوران عام زندگی بحال ہو رہی ہے. اور یورپی اسپیس کرافٹ روزیٹا نے پہلی مرتبہ کسی دمدار تارے کے مدار میں چکر لگانا شروع کر دیے ہیں. پاکستان میں جاری سیاسی محاذ آرائی کے دوران صوبہ پنجاب کے وزیر قانون رانا مشہود نے BBC کو بتایا ہے کہ اگر کسی نے ریاست کی رٹ کو چیلنج کیا تو اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی. حکمران جماعت PML نون کے وزیر سے بات چیت ذرا دیر میں دیکھیے گا، لیکن پہلے لاہور سے شمائلہ جعفری کی یہ رپورٹ جس میں انہوں نے عمران خان کے آزادی مارچ اور اس کے ممکنہ مقاصد اور نتائج جاننے کی کوشش کی ہے. اگست کے مہینے میں یہ ہیں مارچ کے رنگ. جی ہاں، یہ تحریک انصاف کا کیمپ ہے جہاں آزادی مارچ میں شرکت کے خواہش مند اپنی رجسٹریشن کروا رہے ہیں. ان لوگوں سے چھٹکارا ملنا چاہیے جو غلط مینڈیٹ لے کے آئے ہیں اور جعلی مینڈیٹ لے کے آئے ہیں اور پاکستان کے اوپر جمہوریت کے نام سے ایک ڈکٹیٹرشپ چلا رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے 14 اگست کو اسلام آباد کے ڈی چوک میں لاکھوں لوگوں کو اکٹھا کرنے کا ہدف مقرر کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ چیئرمین عمران خان کی ہدایت پر ملک کے مختلف حصوں میں ایسے رجسٹریشن کیمپس لگائے گئے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مارچ میں شمولیت کے لیے آمادہ کیا جا سکے. مارچ کی تیاری کے لیے تحریک انصاف کے جلسوں اور ریلیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. عمران خان نے ابھی بھی اپنے تمام سیاسی پتے تو ظاہر نہیں کیے، تاہم وہ گزشتہ برس کے انتخابات کے آڈٹ، انتخابی اصلاحات، وزیر اعظم کے استعفے اور مڈ ٹرم انتخابات کے مطالبات کر چکے ہیں. اور جو بھی ہوگا ایک جعلی مینڈیٹ سے جعلی حکومت، اس کے دن ختم ہو گئے ہیں، ان کا ٹائم ختم ہو گیا. ہم انشاءاللہ ری الیکشن کروائیں گے اور وہ ری الیکشن کروائیں گے جو ایک صاف اور شفاف الیکشن کمیشن کے ذریعے ہوگا. نون لیگ نے عوام کی توجہ احتجاج سے ہٹانے کے لیے یوم آزادی کی تقریبات کا سلسلہ بھی شروع کر رکھا ہے، لیکن یہ حکمت عملی بھی زیادہ کامیاب نہیں رہی اور اب حکومت واضح طور پر دباؤ کا شکار دکھائی دے رہی ہے. لیکن سوال یہ بھی ہے کہ ڈی چوک میں دھرنے سے وزیر اعظم کو استعفیٰ دینے پر کیسے مجبور کیا جا سکتا ہے. جو کردار ہے طاہر القادری اور عمران خان کا وہ اسی طرف ہے کہ کسی طریقے سے فوج کو بیچ میں ملوث کیا جائے، اور دوسری طرف یہ بھی ایک انالیسز کیا جا رہا ہے کہ شاید فوج میں کچھ ایلیمنٹس ہیں، مثلا کچھ کور کمانڈر ریٹائر ہونے والے ہیں یا DGI ہے یا کچھ لوگ جو نواز شریف کو ناقابل اعتماد سمجھتے ہیں. حکومت کے ساتھ ساتھ آزادی مارچ عمران خان کا بھی اہم سیاسی امتحان ہے. وہ ڈی چوک میں کتنے لوگوں کو اکٹھا کر سکیں گے؟ شاید 14 اگست کے بعد معاملات اسی بنیاد پر طے ہوں. شمائلہ جعفری، BBC نیوز، لاہور. اسی تناظر میں اب سے کچھ دیر پہلے میں نے لاہور میں وزیر قانون پنجاب رانا مشہود سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ عمران خان جو مارچ کر رہے ہیں وہ تو ان کا جمہوری حق ہے، لیکن حکومت کہتی ہے کہ اس سے جمہوریت کو خطرہ ہے. آخر اس سے جمہوریت کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ ہم نے تو ان کو کہا ہے کہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں، آپ اگر ہمارا اٹھا کر دیکھیں آئین کو بھی، اگر آپ ہمارے قوانین کو بھی اٹھا کے دیکھیں تو جو شخص یا جو جماعت نکلتی ہے اس طرح کے وینچر کے اوپر تو وہ ایک بانڈ بھر کے دیتی ہے جو لوکل انتظامیہ کو، اور اس بانڈ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جی ہم یہاں پر کسی قسم کی توڑ پھوڑ نہیں کریں گے، ہم اس علاقے تک محدود رہیں گے. ہم ان سے بارہا اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ نے بھی کہا کہ اسلام آباد اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا اس کی اجازت لی ہے، جہاں پر آپ بیٹھنا چاہتے ہیں اس کی آپ نے اپروول لی ہے. آپ جس ملک میں بیٹھے ہیں یہاں پر بھی احتجاج ہوتے ہیں، لیکن ان احتجاجات کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اور اس طریقہ کار کو فالو کیا جاتا ہے. اچھا، آپ کہتے ہیں کہ طریقہ کار کو فالو کریں، لیکن اگر مارچ پرامن رہتا ہے تو حکومت کے پاس اعتراض یا مخالفت کا جواز کیا رہ جاتا ہے؟
हमारा इरादा अगर ये पुरअमन रहना चाहते हैं, अगर ये आइन के अंदर रहकर ये एहतजाज करना चाहते हैं, ये इनका सियासी हक है, ये बिल्कुल करें। लेकिन जब आप निकलने से पहले ये बात करें कि हम बिस्तर गोल कर देंगे, हमें नई हुकूमत चाहिए, नए इंतखाबात चाहिए, क्या इस हुकूमत ने कोई यहाँ पर करप्शन की है? क्या इस हुकूमत ने जो है अदारों के इस्तेहकाम के लिए कोई ख़तरा बनी है? इस हुकूमत के तो आने से स्टेबिलिटी आ रही है और दिन ब दिन उस स्टेबिलिटी में इजाफा हो रहा है। अच्छा, इत्तलात आ रही हैं कि हुकूमत ने फहरिस्तें बना ली हैं लोगों को गिरफ्तार करने की। अगर ऐसा हुआ तो क्या ये जमहूरी अमल की शदीद खिलाफ वर्जी नहीं होगी? देखें, बात बड़ी क्लियर सी है कि जो भी शख्स कानून को हाथ में लेगा, रिट ऑफ द स्टेट को, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिट ऑफ द गवर्नमेंट, रिट ऑफ स्टेट को चैलेंज करेगा और स्टेट के जो फ़राइज़ हैं उनके अंदर दखल अंदाजी करेगा, तो बिल्कुल उसके ऊपर जो है हम जो कानून के मुताबिक कार्रवाई बनती है वो करेंगे। लेकिन अगर पुरअमन रहेंगे, पुरअमन तौर पर अपनी सियासी जिद्दोजहद करेंगे, सियासी अपना ये एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे, हम इनको फैसिलिटेट करेंगे। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि हुकूमत बदहवासी का शिकार है और कोई साफ हिकमत अमली नहीं नज़र आ रही। ऐसा क्यों है? राना साहब, साफ साफ बताइएगा कि इस मार्च को हुकूमत कैसे हैंडल करेगी? देखें, दो चीज़ें हैं। पहली तो बात है कि हुकूमत ने अभी किया ही नहीं, तो कुछ तो हुकूमत की बदहवासी कहाँ से नज़र आ रही है? अभी तक आप देखें कि ये जितना अटैक है ये सारे का सारा एक जमात की तरफ से आ रहा है। एक सियासी जमात है, एक गैर सियासी जमात है। पीटीआई को अवाम ने वोट दिया है, हम उसके जहाँ पर वोट उनको मिले हम उसके मैंडेट का एहतराम करते हैं। लेकिन दूसरे साहब जो कैनेडियन पल्ट हैं वो इस मुल्क के आइन को लपेटना चाहते हैं, इस मुल्क के कानून को लपेटना चाहते हैं और एक नया निज़ाम लेकर आना चाहते हैं। उनको ये मैंडेट किसने दिया? ये मैंडेट हमेशा अवाम के पास होता है और ये अवाम अगर फैसला कर लें अगले इलेक्शन के अंदर या इवन के वो पार्लियामेंट के अंदर ये बात लेकर आ जाएं कि जी हम इस आइन को ख़त्म करके नया आइन लाना चाहते हैं, तो ये इख्तियार पाकिस्तान के अवाम के पास है, किसी फ़र्द वाहिद के पास नहीं है। आज़ादी मार्च और जमहूरियत, इस पर आपने भी बढ़ चढ़ कर अपनी राय दी। राय इब्रार अहमद लिखते हैं, जमहूरियत? कौन सी जमहूरियत? जो लोग इस करप्ट सिस्टम का हिस्सा हैं उन्हें जमहूरियत की कोई परवाह नहीं। हबीबुर रहमान जद्दा से लिखते हैं, पाकिस्तान में कभी भी शफाफ इलेक्शन नहीं हुए, पीटीआई ने भी धांधली की है, हुकूमत को 5 साल पूरे करने दें। मरियम समर लिखती हैं, वतन की खिदमत के लिए इक़्तिदार में आना ज़रूरी नहीं, तारीख़ बताती है कि जो इक़्तिदार में आया उसने मुल्क और कौम को खूब लूटा। आप भी चाहें तो ट्विटर और फेसबुक के ज़रिए अपनी आरा हमें भेज सकते हैं। और अब दीगर ख़बरों की तरफ चलते हैं। चीन में हुकाम का कहना है कि इतवार को यूनान के एक सूबे में आने वाले ज़लज़ले में हलाकतों की तादाद 600 तक पहुंच गई है। 6.1 की शिद्दत के ज़लज़ले से पहाड़ी इलाके में तबाही मच गई और हज़ारों मकानात तबाह हो गए। सन 1979 में इसी इलाके में ज़लज़ले की वजह से 15,000 अफराद हलाक हो गए थे। इराक के शुमाली शहर मौसुल में एक फ़ज़ाई हमले में 30 से ज़्यादा लोग हलाक हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक हमले का हदफ आईसिस के जंगजुओं का एक अड्डा था। कहा जा रहा है कि ये एक ड्रोन हमला था, लेकिन अभी तक इसकी तस्दीक नहीं हो सकी। साइंसदानों का कहना है कि एक मामूली एस्प्रिन की गोली के रोज़ाना इस्तेमाल से आप कैंसर के ख़तरे से बच सकते हैं। लंदन में वाक़े क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक मोटापा कम करने और तंबाकू नोशी छोड़ने के बाद एस्प्रिन का इस्तेमाल कैंसर से बचने का सबसे बेहतर और आसान तरीका है। ज़ाद ज़फ़र की रिपोर्ट। एक सस्ती और रोज़मर्रा की दवा जो हर जगह आम दस्तयाब है। बहुत से दिल के मरीज़ एस्प्रिन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब शवाहिद सामने आए हैं कि ये कैंसर को रोकने में भी पुरअसर हो सकती है। साइंसदानों ने एस्प्रिन पे होने वाली मुख्तलिफ रिसर्च का मुताला करके ये जाना कि ये गले और अंतड़ियों के कैंसर को रोकने में भी मददगार साबित हो सकती है। इसके मनफी असरात में पेट से खून बहना और फालिज शामिल हैं, लेकिन अगर पूरा जायज़ा लिया जाए तो ये ख़ास तौर पे 50 से 65 साल अफराद के लिए कम मिकदार में फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। हमारा ख्याल है कि 50 से 65 साल अफराद को डॉक्टर से रुजू करने के बाद एस्प्रिन लेनी चाहिए। इसके कुछ मनफी असरात हैं, लेकिन मजमूई तौर पर इसके फ़वाइद कहीं ज़्यादा हैं। बरतानिया की सरकारी हेल्थ सर्विस NHS अब तक एस्प्रिन को कैंसर के इलाज के लिए नहीं तजवीज़ करती। कैंसर रिसर्च UK के मुताबिक एस्प्रिन के असरात मुस्बत नज़र आ रहे हैं, लेकिन अभी कुछ और टेस्ट का इंतज़ार करना ज़रूरी है ताकि डॉक्टर्स इसके मनफी असरात को बेहतर जान सकें। ज़ियाद ज़फ़र, BBC न्यूज़।
bbcurdu.com पर आप कौन सी खबरें ज़्यादा पढ़ रहे हैं? भारत में एक फैशन शूट में गैंग रेप की अक्कासी पर शदीद तनकीद और श्रीलंका में खेले जाने वाले टेस्ट में यूनिस की सेंचुरी और असद की निस्फ सेंचुरी की खबरें ज़्यादा पढ़ी जा रही हैं। प्रोग्राम में शामिल रिपोर्ट्स भी आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर देखिएगा, फ़लस्तीन की शिद्दत पसंद तंजीम हमास की इसराइल के खिलाफ मुज़ाहमत से तंजीम पर क्या असरात पड़ रहे हैं, और एक कॉमेट के गिर्द स्पेसक्राफ्ट के चक्कर लगाने से क्या जिंदगी के आगाज पर रोशनी डाली जा सकती है। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। इसराइल और हमास के दरमियान 3 रोज़ा जंग बंदी बरकरार है और दोनों जानिब के नुमाइंदे काहिरा में मुज़ाकरात कर रहे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जॉन केरी ने कहा है कि फ़लस्तीनी और इसराइली जंग बंदी से फ़ायदा उठाते हुए मसले के मुस्तकिल और पायदार हल की जानिब बढ़ें। BBC के ऑर्ला गेरन ने जंग बंदी के दौरान ये जानने की कोशिश की कि हलाकतों और तबाही के बाद हमास के बारे में फ़लस्तीनियों के क्या तासुरात हैं। रिपोर्ट पेश कर रही हैं खदीजा आरिफ। हमास अपने इन घरेलू साख्त के रॉकेटों की नुमाइश कर रही है जिनका निशाना तेल अवीव है। इस वीडियो में तो खाली मैदान नज़र आ रहा है, लेकिन वो रिहायशी इलाकों से भी रॉकेट हमले करते हैं। उनकी इस प्रोपेगेंडा वीडियो में जंगजुओं को असलहे से लेस हमले के लिए तैयार देखा जा सकता है, लेकिन अमूमन ये आंखों से ओझल और कई तो बाकायदा तौर पर ज़ेर ज़मीन रहते हैं। मोहम्मद शाबान गज़ा में उनके मुकामी कमांडर में से एक थे। वो एक स्नाइपर थे जो गुज़िश्ता महीने इसराइल के एक फ़िज़ाई हमले में हलाक हो गए थे। उनके वालिद अबू अहमद खुद भी एक कमांडर थे और उन्हें अपने बेटे पर फ़ख्र है। वो अपने बाकी बेटों को भी कुर्बान करने के लिए तैयार है। वो इस बात से इनकार करते हैं कि हमास इसराइली शहरियों पर हमले कर रही है। मैंने इसराइल में हमास के रॉकेटों का निशाना बनने वाले स्कूल और घर देखे हैं, तो आप शहरियों पर हमला कर रहे हैं। आम शहरी महफूज हैं, हम सिर्फ फौजियों और उनके अड्डों पर हमले करते हैं। लोग यहाँ 4 हफ्ते जारी रहने वाली बमबारी से होने वाले नुकसान का अंदाजा लगा रहे हैं। इस पर हमारा कोई कंट्रोल अभी भी मलबे से लाशें निकाली जा रही हैं, लेकिन उनके पास सायरन और पनाहगाहें हैं। अस्करी सलाहियत को कमजोर करना और फलस्तीनियों को हमास की मुखालफत पर आमादा करना है। क्या वो इस मकसद में कामयाब हुए हैं या फिर इन हलाकतों और तबाही ने हमास की हिमायत में मजीद इजाफा किया है? जंग बंदी के बाद गजा की मार्केट में हमें हमास के लिए सिर्फ हिमायत ही मिली। We are so proud of the Palestinian resistance that defends us. So I am positive that Hamas. लेकिन इसराइल के मिसाइलों से बचने की कोशिश करने वाले इन बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए कोई नहीं था। हमें फ़लस्तीनी मज़ाहमत पर वो साहिल पर फुटबॉल खेल रहे थे और उनमें से 4 हलाक हो गए थे। इस वाक़े के बाद उनके लवाहिकीन ने भी अब हमास की हिमायत शुरू कर दी है। इस हमले में बाकर फैमिली ने अपने 11 साला बेटे मोहम्मद को खो दिया था। वो कहते हैं कि वो उनके घर का चिराग था। मारा ये कहती रहती हैं कि वो भी जन्नत में मोहम्मद के पास जाना चाहती हैं। मोहम्मद की वालिदा ने मुझे बताया कि मैंने कभी भी हमास की हिमायत नहीं की थी। मेरा ख़ानदान का उनसे झगड़ा था क्योंकि उन्होंने मेरे भतीजे को मार दिया था, लेकिन अब जो हुआ उसके बाद मैं उनकी हिमायत करती हूँ और खुदा उनकी हिफाजत करे। मछेरे भी समंदर में वापस लौट आए और मामूल की ज़िंदगी की जानिब बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। फ़लस्तीनी इसराइल के फ़ौजी तसल्लुत के साए में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इनमें से कई अफराद के लिए हमास ही उनकी आखिरी उम्मीद है। आपने देखी गाज़ा से ऑर्ला गेरन की रिपोर्ट जो खदीजा आरिफ पेश कर रही थी। रिपोर्ट में कुछ तकनीकी गलतियों की वजह से माजरत चाहते हैं। तकरीबन 10 बरस का खलाई सफ़र तय करने के बाद यूरोपियन स्पेस एजेंसी के स्पेसक्राफ्ट रोज़ेटा ने दुमदार तारा यानी कि कॉमेट के मदार में चक्कर लगाना शुरू कर दिया है। ये अपनी तर्ज का पहला मिशन है। इस मिशन से इस बात के शवाहिद मिलने की उम्मीद है कि कॉमेट किस तरह ज़मीन पर पानी और ज़िंदगी के दीगर अज्जा लेकर आया था। मज़ीद तफसीलात BBC के साइंस अमूर के नामनिगार पल्लव घोष से। खलाई गाड़ी रोज़ेटा ने दुमदार सितारे यानी कॉमेट के मदार में चक्कर लगाना शुरू कर दिए हैं।
रोज़ेटा का मिशन ये मालूम करना है कि कॉमेट किन अज्जा से बना है। 4.5 अरब साल पहले ज़मीन के वजूद में आने के कुछ ही अरसे के बाद बड़ी तादाद में कॉमेट इससे टकराए थे। ख्याल है कि ज़मीन पर पानी और ज़िंदगी के लिए दीगर ज़रूरी अज्जा इन्हीं कॉमेट के ज़रिए ही पहुँचे थे। जैसे जैसे ज़मीन का दर्जा हरारत कम हुआ, ये अज्जा आपस में घुल मिल गए और ज़िंदगी का जन्म हुआ। चार्ल्स डार्विन ने कहा था कि ज़िंदगी का आगाज़ एक गर्म तालाब में हुआ था। ज़िंदगी के बनने में पानी का अमल दखल था। ज़्यादातर ये माना जाता है कि पानी कॉमेट के ज़रिए ही ज़मीन पर पहुंचा होगा। एक थ्योरी ये है कि कॉमेट अपने साथ ज़िंदगी के बुनियादी अज्जाए तरकीबी लेकर आए, जिनमें कार्बन, पानी, मीथेन और कई दीगर केमिकल कंपाउंड शामिल हैं। इन अज्जा के मिलाप से इब्तिदा में ज़िंदगी इंतहाई बुनियादी शक्ल में तैयार हुई, जो फिर अरबों साल में हैवानात और नबातात का रूप अख्तियार कर गई, जैसा कि आज हम इन्हें देखते हैं। ग्रांट जोन्स एक मुहक्किक हैं और सरे के करीब खलाई तहकीक की तजर्बागाह में काम करते हैं। वो रोज़ेटा से हासिल होने वाली मालूमात का इंतहाई बारीकी से मुतालिया कर रहे हैं। रोज़ेटा एक इंतहाई अहम सवाल का जवाब तलाश कर रही है कि क्या ज़मीन पर ज़िंदगी का सामान कॉमेट के ज़रिए पहुंचा? क्या ये वो अज्जा लेकर आए थे जिन्होंने ज़िंदगी का रूप इख्तियार किया? इससे पहले कभी कोई खलाई गाड़ी इतनी देर तक किसी कॉमेट के इतना करीब नहीं रही। रोज़ेटा अगले कुछ महीनों तक कॉमेट की तस्वीर और इसके मुख्तलिफ हिस्सों की पैमाइश हासिल करेगी। साइंसदानों का खलाई गाड़ी को नवंबर में कॉमेट पर उतारने का मंसूबा है। वो ये मालूम करना चाहते हैं कि आया ज़मीन पर ज़िंदगी के आगाज़ का राज कॉमेट में छुपा हुआ है। हलब गोश की रिपोर्ट पेश की असद अली ने। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @सबा-एतजाज़। और इसके साथ ही सरबीन इख्तिताम को पहुंचा। प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर आप अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। फेसबुक और ट्विटर हाजिर है और आप हमारे ट्विटर हैंडल BBC उर्दू के ज़रिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। सबा-एतजाज़ को अब इजाज़त दीजिए। शब बखैर।